Hello, dear children. So, we are once again together with the second topic of our Indian economy. The first we have already done, Indian economy on the eve of independence. Now, the most part of our book will be on the post independent era. And this particular chapter that we shall be discussing is Indian economy from 1947 to 1990. Why 1990? I'll come to that slightly later, but this particular chapter will talk about 1947 to 1990. So it's a big time period and a very important time period because at that point of time we had just gained independence. We started with our 5-year plans. We wanted to take up our economy from where Britishers had left us. In fact, they had left us almost nowhere. So this was a very, very important time period. The entire unit or the entire topic I shall be dividing mainly into 3 parts. The first part that I shall be discussing today will be on 5-year plans in India. The second will be on the agricultural sector, very important in the context of the Indian economy. And the third subtopic in this chapter will be on industry and foreign trade. During what time period? You have to be careful about it. I'm only talking about 1947 to 1990. So with that in mind, let us therefore now begin with the first subtopic, and that is your 5-year plans in India. So children, when Britishers left, so it was a prime responsibility of the government therein to develop the economy. Now, how to develop the economy? You have to adopt some economic system. There are mainly 3 economic systems again with which you are familiar, but I repeat, it is capitalism, it is socialism, and it is a mixed economy. Capitalism is the private ownership, profit is the main motive. Socialism is collective ownership, social welfare is the main motive. And then mixed economy, which has the combination of both your capitalism and your socialism. So this system of mixed economy, because you know our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, he really got extremely influenced by this system of socialism, which was there then, what you call Russia now was then known as USSR, and they were practicing this socialism. So he was very much influenced by this socialism because its main aim was to maximize social welfare. So all said and done, we ultimately adopted a system of mixed economy wherein our motive will not only be profit motive but also social welfare. And in fact, at that point of time, when we started in 1950 with the first 5-year plan, the most of the emphasis was on the social welfare aspect. So that's how we came to be adopting the 5-year plans. And the 5-year plans, as you can already see, the history part of it, we adopted the mixed economy system, and it was in 1950-51 that the first 5-year plan was launched. The goals of the 5-year plans, now herein let me be very, very clear. When we talk about the goals of the 5-year plans, there are 2 types of goals. One, the long-term goals, and the other is the short-term goals. So the long-term goals are also, the goals which will be there not for that particular plan only, but for over a period of nearly 2 decades. In fact, every 5-year plan will definitely have that particular goal apart from the specific goals. So discussing the long-term goals, you will find it was growth of the economy, modernization of the economy, self-reliance of the economy, and equity in the economy. Moving on to the first long-term goal, growth, it would mean that you have to increase the production of goods and services in the economy, which is technically known as GDP, the gross domestic product. And what is that? All the goods and services that are produced in the market during a year go in for GDP. And from where do these goods and services come? They come from different sectors of the economy. And what are those different sectors mainly?
It's the agricultural sector, the industrial sector, and the service sector. So how much goods and services are being produced in the agriculture sector, in the industrial sector, and the service sector shows the structural composition of an economy and talks about the growth of the economy. The next long-term objective was modernization of the economy. कि आप इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन करें तो किस तरह की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करें. So it is the use of the new technology, the modern methods of technology that was sought to be a very important long-term goal. यहां पर एक चीज का आपने ध्यान जरूर रखना है. And what is that? मॉडर्नाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं थी हमारे 5 ईयर प्लान्स में. मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एंटायर सोसाइटल आउटलुक ऑल्सो. तो सोसाइटी में जो प्रेवलेंट डॉगमास थे जिनकी वजह से ग्रोथ, जो इससे पहले वाला हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, तो जिसकी वजह से ग्रोथ कम हो सकती है, तो ऐसी सोसाइटल डॉगमास, ऐसे सोसाइटल रूढ़िवादी जिसे हम कहते हैं, हमारे समाज में जो रूढ़िवादी विचार थे जिसकी वजह से समाज में जो उत्थान रुक रहा था, जो प्रगति रुक रही थी, उससे भी हमें बाहर निकलना था मॉडर्नाइजेशन में. सो ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन. उसके बाद आपका तीसरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस. एंड व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ रिलायंस? आत्मनिर्भर होना. दैट इज वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन anybody else for our basic necessities. So it was extremely important for us that we become self-reliant. And why was it important? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें कहाँ छोड़ के गए थे? जीरो में. कुछ भी नहीं छोड़ के गए थे हमारे पास. तो हमें खाने से लेकर के, छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना था. डेफिनेटली हमें बाहर से सामान मंगवाना था. और खासकर जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो डिवाइडेड कंट्री छोड़ के गए. ड्रेन ऑफ वेल्थ हो चुका था, आप जानते हैं. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हो चुका था, आप जानते हैं. सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, आप जानते हैं. और जब गए तो बिल्कुल एक डिवाइडेड कंट्री छोड़ करके चले गए. सो इस वजह से हमें सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी था. इस वजह से सेल्फ रिलायंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल हमारा 1947 से 1990 के बीच में रहा. और इनफैक्ट उसी समय क्यों, आज भी सेल्फ रिलायंस एक बहुत बड़ा गोल है. आप देख रहे हैं कि आजकल कोविड-19 के चलते जितने भी पीपीईज, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आ रहा है, और बहुत सी कंट्रीज आज भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं. न्यूज डेफिनेटली आप लोग देखते ही होंगे, सुनते ही होंगे कि चाइना ने काफी फॉल्टी पीपीईज भेजे हैं. तो आज की डेट में भी हम लोग छोटी से छोटी पीपी इज नॉट समथिंग टू टेक्निकल अ थिंग. मास्क, जो कि आज हमें कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में ही बनाइए, मास्क भी चाइना भेज रहा है. एंड ऑल ऑफ वेरी वेरी इंफीरियर क्वालिटी. सो आप देखिए कि छोटी से छोटी चीजों के लिए आज की डेट में भी हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है. इटली ने वापस भेज दिए, स्पेन ने वापस भेज दिए, इंडिया में आए थे पीपी इक्विपमेंट्स, वो वापस भेज दिए. जो टेस्टिंग इक्विपमेंट आ रहा था कोविड के लिए, वो फॉल्टी है, वो वापस भेजे जा रहे हैं. तो आप सोचिए कि ऐसी इमरजेंसी के टाइम भी हम इसमें सेल्फ रिलायंट नहीं हैं. तो एटलीस्ट, अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मे बी आप लोगों के दिमाग में सवाल उठे कि सेल्फ रिलायंस का मतलब है सब कुछ क्या हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं तो सेल्फ रिलायंट होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. हर कोई कमोडिटी जो हम कंज्यूम करते हैं हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते. हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर, काफी ऐसी कमोडिटीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है जो हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते. दैट इज फॉरेन ट्रेड पार्ट ऑफ इट. लेकिन आपको दूसरी कंट्री पे इतना रिलाय नहीं करना है, इतना निर्भर नहीं होना है कि वो आपको एक्सप्लॉइट करने लग जाए. तो सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि आप अपनी टर्म्स पर अगर ट्रेड करें दूसरी कंट्रीज के साथ, अगर क्या, ट्रेड तो करना ही है, वरना वर्ल्ड ट्रेड तो चलेगा नहीं. कोई कंट्री सारा का सारा सामान अपनी जरूरत का अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस नहीं कर सकती. देयर हैज टू बी ट्रेड. आप अपने घर में अपना सारा सामान प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं. आपको दुकान पे जाना है सामान लेने के लिए, आपको दूसरे सोर्सेज से सामान लेकर के आना है. वैसे ही कंट्रीज के साथ भी होता है. तो दैट मीन्स सेल्फ रिलायंस का ये आपको गलत मतलब नहीं निकालना कि A to Z सब आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे. फॉरेन ट्रेड करेंगे, बट not at the cost of being exploited. So self-reliance therefore was an extremely important goal.
After self-reliance, we have the next important long-term goal, which is equity. And equity means that the benefits of economic development must reach all the sections of the society, whether it is rich or poor. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है और उसके बेनिफिट्स, उसका फायदा जो हो रहा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही मिल रहा है. एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स, चाहे वो फूड की नीड्स हो, चाहे वो रहने की नीड्स हो, चाहे वो एजुकेशन की नीड्स हो, चाहे वो हेल्थ केयर की नीड्स हो. सबके पास इकोनॉमी में जितने भी ये प्रोग्रेस हो रही है, इसका फायदा, इसके फल, इसके फ्रूट्स जो हैं वो सबको बराबर मिलने चाहिए. सो दीज वर इन फैक्ट द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 5-year plans. नाउ 47 से 1990, और अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिक हो जाऊं 5-year plans के चलते, 47 इसलिए क्योंकि 47 में हमें आजादी मिल गई थी. अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो 50 से अगर बात करूं, क्योंकि 50-51 में फर्स्ट 5-year प्लान आया था, तो हर एक 5-year प्लान की अपनी कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स थे, क्योंकि हर 5-year प्लान के अपने कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में था. जैसे मान लीजिए इस समय जो प्लानिंग होगी उसमें प्रेजेंट सिचुएशंस को लेकर के प्लान किया जाएगा, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना. आप देख रहे हैं कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करने के लिए कहा है. हम लोग घर में हैं तो हमें कहा जा रहा है कि भाई घर में दावतें मत करिए, इस समय रिसोर्सेज को संभाल के इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड दे आर लिमिटेड, और रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस होते हैं. तो हर प्रेजेंट सिचुएशन में हमें रिसोर्स को उसके उस यूज के लिए इस्तेमाल करना है जो सबसे ज्यादा जरूरी इस समय हमारे लिए है. तो इसी तरह से हर 5-year प्लान की अपनी कुछ जरूरतें थी, और उन्हीं जरूरतों के चलते हर 5-year प्लान की अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे. ये हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं हम. पहला 5-year प्लान 51 से 56 तक, और उसका फोकस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसलिए था क्योंकि उसी समय 1947 में रादर कंट्री डिवाइड हो गई थी, और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान से इंडिया आई थी. इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले लोग इतने नहीं थे जितने पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोग थे. एग्रीकल्चरल सेक्टर का बुरा हाल था, आपको पता है. ब्रिटिशर्स ने कमर्शियलाइज किया था एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो सबसे पहली जरूरत थी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना कैसे खिलाया जाए, बिकॉज फूड वॉज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इस वजह से हमारा जो पहला 5-year प्लान था उसका फोकस था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. और मर्सीफुली इस दौरान मॉनसून्स बहुत अच्छे हुए. आप जानते हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर मॉनसून्स पे डिपेंडेंट आज भी है, आज भी बहुत बड़े हद तक मॉनसून्स पर डिपेंडेंट है, जबकि आज इरिगेशन फैसिलिटीज में बहुत सुधार आया है. तो आप सोच सकते हैं 1951 और 56 इस प्लान के दौरान कितना ज्यादा हम लोग मॉनसून्स पे डिपेंडेंट थे. एंड एज गुड लक वुड हैव इट, वी हैड गुड मॉनसून्स, और हमारा जो टारगेट था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का वो हमने अचीव किया. फिर आया हमारा सेकेंड 5-year प्लान. तो जब फर्स्ट 5-year प्लान में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हमारी टारगेट अचीव किया, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि बहुत जरूरी है कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी तो डेफिनेटली किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, और किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ जीडीपी ग्रोइंग. तो दूसरा 5-year प्लान 56 से 61, और एक बहुत बड़ा नाम हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डेवलप करने में है डॉक्टर पीसी महालनोबिस का. It was under his leadership that a Mahalanobis model was formed, और इसका पूरा का पूरा एम्फेसिस था कि किस तरह से इंडिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए. सेकेंड 5-year प्लान को हम इंडस्ट्रियल प्लान भी कहते हैं, क्योंकि उसका सारा फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ही था. किस इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए, किस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम आगे बढ़ाएं. दिस वाज रिगार्डिंग द सेकेंड 5-year प्लान. देन द थर्ड 5-year प्लान 1961 से 1966 में, और मेन टारगेट था कि हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम लोग सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ें.
Now, in the third 5-year plan, something very drastic happened. 61 to 66 का टाइम पीरियड था. 62 में we had an unfortunate war with China. 65 में an unfortunate war with Pakistan. So आप सोच सकते हैं इस 5-year के प्लान पीरियड में we had to go into 2 wars with 2 of our neighbors. And whenever a country is in war-like situation, तो सारे के सारे रिसोर्सेज इकोनॉमिक डेवलप, क्योंकि रिसोर्सेज तो स्केर्स हैं, लेकिन जब कंट्री की सिक्योरिटी का सवाल आता है तो सिक्योरिटी फर्स्ट. सो कंट्री के सारे जितने भी रिसोर्सेज थे वो वॉर पर्पसेस के लिए चले गए. सो ये जो 5-year प्लान रहा, इसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया. बहुत ही टर्मोइल का पीरियड था थर्ड 5-year प्लान का पीरियड, 61 to 66 का पीरियड. तो इस वजह से जब 66 के बाद नेक्स्ट 5-year प्लान का मौका आया तो सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग अगले 5-year प्लान के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट थर्ड 5-year प्लान में हो नहीं पाई ढंग से. सो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू गो इन फॉर प्लान हॉलीडेज. प्लान हॉलीडेज का क्या मतलब था? कोई प्लान नहीं, वो मतलब नहीं था. मतलब था कि कोई 5-year प्लान नहीं. सो गवर्नमेंट ने एनुअल प्लान्स डिसाइड किए. एक प्लान हॉलीडे 1966 to 69 3 साल के लिए किया उन्होंने. तो 66 से 67 एक साल के लिए प्लान बनाया और उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश की. 67 to 68 दूसरा प्लान बनाया और उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश की. 68 to 69 तीसरा प्लान बनाया और उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश की. इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को पर भी ध्यान दिया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी ध्यान दिया गया. थोड़ा सा चीजें संभली तो फोर्थ 5-year प्लान शुरू हुआ 1969 से 1974 तक. जैसा कि चल ही रहा था, सेल्फ रिलायंस के ऑब्जेक्टिव को और आगे बढ़ाया गया. उस समय मिसेस इंदिरा गांधी पावर में थी और प्राइम मिनिस्टर थी, और तब उन्होंने इंडिया में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया. बहुत फेमस नारा था. और तब एक 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसे हम 20 सूत्री कार्यक्रम कहते हैं, वो सरकार ने देश के सामने रखा, जिसमें कि मेजर एम्फेसिस था हाउ टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया. और बहुत ही सारे उसमें कॉन्सेप्ट्स थे जो पूरे करने थे. एंड ऑल्दो द टारगेट वाज फॉर 5.7%, बट वी कुड अचीव ओनली 3.3%. तो अपने टारगेट से ये प्लान जो था पीछे रह गया, अचीव नहीं कर पाया. फिफ्थ 5-year प्लान 1974 to 79, और एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई, इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी गई, माइंस को प्रायोरिटी दी गई. इस प्लान को 1978 में टर्मिनेट करना पड़ा. मतलब 79 तक का पीरियड था, मगर 1978 में टर्मिनेट करना पड़ा. अब क्यों टर्मिनेट करना पड़ा? क्योंकि 1975 में मिसेस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी. 1975 was the year of emergency, when emergency being declared in the country. When emergency was declared, so everything came into the hands of the central government. आज की डेट में जो आप लॉकडाउन देख रहे हैं, ये भी तो एक तरह की अनऑफिशियल इमरजेंसी ही तो है. एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जितनी भी मॉनिटरिंग हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मॉनिटरिंग कर रही है. आपने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा होगा कि केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लॉकडाउन को ईज करेंगे, और इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नाराजगी जताई और उनसे कहा कि अगर एक जगह ईज करोगे तो वो सब जगह पहुंच जाएंगे, तो जो पूरी कंट्री में लॉकडाउन हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. एंड देन केरला की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, वी विल गो ओनली एज पर द इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस. इट्स एन इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, तो इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस वी विल अबाइड बाय द गाइडलाइंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सिमिलरली 1975 में एक पॉलिटिकल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, मिसेस इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की थी, और इसके चलते कंट्री में 1977 में फिर से इलेक्शन हुए. 1977 में इलेक्शन हुए, मिसेस इंदिरा गांधी हार गई, बुरी तरह से हारी. जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने 1978 में जो ये प्लान था उसको खारिज कर दिया. सो टर्मिनेट हो गया हमारा ये वाला प्लान. कौन सा वाला प्लान टर्मिनेट हुआ? फिफ्थ 5-year प्लान, जो अदरवाइज 1979 तक था. और क्योंकि ये एक टर्मोइल का पीरियड था, तो फिर सिक्स्थ 5-year प्लान इमीडिएटली स्टार्ट नहीं किया गया.
रोलिंग प्लान शुरू किए गए 78 से, क्योंकि 79 तक का तो नॉर्मल पीरियड था ही ना, तो जो 78 में टर्मिनेट हुआ, तो 78 से 79 को एक रोलिंग प्लान के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया, या उसमें काम किया गया 78 से 79 रोलिंग प्लान। देन केम 1980, और ये पीरियड इतना ज्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल रहा कि 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, 1977 में दोबारा इलेक्शन हुए, दूसरी पार्टी गवर्नमेंट में आई, और विद इन 1.5 क्वार्टर टू 2 इयर्स ये जो नई पार्टी आई थी, जनता पार्टी पावर में आई थी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर दे लॉस्ट देयर पार्लियामेंट में इन्होंने अपनी मेजोरिटी खो दी। तो 1980 में फिर इलेक्शंस हुए, और फिर मिसेस इंदिरा गांधी ह्यूज मेजोरिटी से पावर में आई, और 1980 में फिर जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था वो दोबारा। आप देखिए कैसे इकोनॉमी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से कैसे हमारे 5 ईयर प्लान्स पर, चाहे वो हमारा इंडो पाक वार हो, इंडो चाइना वॉर हो, या फिर इमरजेंसी डिक्लेयर हो, तो किस तरह से वो पॉलिटिकल जो चेंजेस होती हैं या पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस जो होती है, किस तरह से हमारी इकोनॉमी पर भी असर डालती है, किस तरह से प्लान्स को भी इधर उधर चेंज करना पड़ गया। और 1970s के ही दौर में हमें पाकिस्तान के साथ एक और वॉर करनी पड़ी थी, सेकेंड वॉर करनी पड़ी थी। सो एनीवे, सो दिस वाज देन रिगार्डिंग द 6th 5 ईयर प्लान जो 1980 से 1985 के बीच में चला। पॉवर्टी इरेडिकेशन थी, मिसेस इंदिरा गांधी पावर में थी, उनका गरीबी हटाओ प्रोग्राम पहले भी चल रहा था, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, पॉवर्टी इरेडिकेशन और सेल्फ रिलायंस की उन्होंने बात की, एंड इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, और जो टारगेट था वो अचीव हुआ 6th 5 ईयर प्लान में। देन वी वेंट ऑन टू द 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 में, और सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, एंड देन इट वाज इन दिस टाइम प्राइवेट सेक्टर का रोल हमारी इकोनॉमी में धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऑल दिस वाइल 7th 5 ईयर प्लान तक आप देखिए ये 1990 आ गया हमारा चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर प्लान्स जो हैं हम 1947 से 1990 तक ही पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कितने 5 ईयर प्लान्स 1990 तक हुए थे? 7 5 ईयर प्लान्स हुए थे। मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ूंगी, इसके बाद भी बढ़ूंगी प्लान्स के बारे में, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से बताना चाहती हूँ कि अभी तक हमारे कितने प्लान्स हुए हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 1990 तक हमारे 7 5 ईयर प्लान्स हो गए थे, इंक्लूडिंग योर एनुअल प्लान्स एंड योर रोलिंग प्लान्स। सो 1985 से 1990 के बीच में 1984 में मिसेस इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, एंड 1985 में इलेक्शंस हुए, मिस्टर राजीव गांधी केम इनटू पावर विद अ थंपिंग मेजॉरिटी। इसलिए 8th 5 ईयर प्लान की बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन रही, पॉलिटिकल सेटअप बहुत वोलेटाइल था इस वजह से। तो इस वजह से 1990 और 95 का जो प्लान होना था, जो 8th 5 ईयर प्लान होना था, उसको स्टार्ट एनुअल प्लान्स के रूप में किया गया। एक प्लान 1990 और 91 और दूसरा 91 92। फाइनली 1992 से 97 में 8th 5 ईयर प्लान आया, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एंड इट वाज, नाउ वी आर गोइंग पोस्ट 1990, है ना। एंड इट वाज ड्यूरिंग दिस प्लान दैट प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो अब आप समझ रहे होंगे that the new economic policy of India is a trade-off. Pre-1990 इंडिया की हम जो प्लान्स हैं, जो हमारी डेवलपमेंट है, पूरी डेवलपमेंट जो है, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो एराज में कह लीजिए डिवाइड करते हैं, एक तो प्री 1990 और एक पोस्ट 1990। तो ये वाला प्लान्स मैं 1990 तक समझा रही थी, लेकिन क्योंकि 90 के बाद भी चले हैं और मैं 5 ईयर प्लान्स की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको और आगे ले जा रही हूँ पोस्ट 1990। तो ये यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई,
इंडिया के किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, बहुत बड़ा बदलाव आया, जो मैं अपने अगले वीडियोस में डिटेल में कवर करूंगी. राइट नाउ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द 5-year plans. After the 8th 5-year plan, we moved on to the 9th 5-year plan, 97 to 2002. Main focus was on growth with justice and equity. Moved on smoothly to the 10th 5-year plan, 2002 to 2007, which aimed mainly to increase the per capita income of the country. Per capita income is income per person. Prati Vyakti Aay. That means every person in the economy must have an increased income was its main objective. From 2007 to 2012, we had the 11th 5-year plan. It was prepared by our former RBI governor, Dr. C. Rangarajan, and it aimed at faster and more inclusive growth. And then from 2012 to 2017, we had the 12th 5-year plan. Its main aim was sustainable growth. By sustainable growth, we mean growth which takes place over a long period of time. Now I stopped at the 12th 5-year plan, bringing you up till 2017, because the present government, the present NDA government came to power in 2014. 2015 में एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन लिया गया, प्लानिंग कमीशन को खारिज कर दिया गया. प्लानिंग कमीशन वॉज एबॉलिश्ड और उसके बदले एक नया कमीशन दिया गया जिसे नाम दिया गया नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नीति आयोग बनाया गया. प्लानिंग कमीशन बिल्कुल खत्म हो गया. तो इस वजह से इंडिया में ऑफिशियली आज तक 12 5-year प्लान्स हुए हैं. अब जो चलता है वो नीति आयोग के गाइडलाइंस पर चलता है, उनकी रिकमेंडेशंस पर चलते हैं हमारी प्लानिंग. प्रेजेंट सिनारियो जो है वो 3-year एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, क्योंकि प्लान कब तक था, 17 तक था, और 2015 में नीति आयोग आ गया. सो एक डॉक्यूमेंट बनाया गया 3-year एक्शन प्लान के लिए, जिसके पास एक ब्रॉड रोड मैप था सरकार के लिए कि किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं. हालांकि इसकी कोई किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल पावर्स नहीं थे, बट एक रोड मैप दिया गया कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. So at present we are going by the recommendations of the Niti Aayog, and that is how today the planning of the country is moving. So plans का mainly एक story के जैसे आप इसको समझेंगे. Story कैसी? Political scenario की, economic development की, और जो changing perspective हमारा रहा. So this was regarding the first part of Indian economy, 1950 to 1990 5-year plans. I'm sure you have gone through your chapter. You will definitely find this particular video absolutely relatable to what you have read in the 5-year plans. So I'll see you soon again with Indian economy 1950-1990 agricultural development. Take care till then, and keep safe.